Hi guys, welcome to Learn French with Raghav. In today's video, I'll be telling you how I scored 100 out of 100 in class 10th French. So, a little introduction about me. My name is Raghav Verma. I studied French for past 8 years and I'm continuing my studies in French language. In class 10th, I scored 100 out of 100, and in my class 12th, I scored 96 in French language. Alright, and I'm also DELF qualified. So, the prerequisite, that is something that is most important for the for scoring such good marks in a language, in French language to be more specific, is your interest. Yes, your interest plays a major role in you scoring good marks in a particular subject, right? This video is mainly for classes 9th and 10th. 12th, if you want, I can cover in some other video, or even other junior classes might be covered if you guys comment down as per your needs. All right. So this is the prerequisite. All right. So this one special thanks to is to my French teacher, my professor de français, Madame. I won't tell her name, but yeah, she was one of the main reason I scored such good marks in both the classes, 10th and 12th. She was with me by all the time. I used to send her so many doubts. She used to reply each and every doubt, so she played a really big role. So I would say a good teacher is very important, and having your doubt cleared is as important too, right? So if you don't have such opportunity, you can always contact me. You can always contact me at. So this is my email ID. On this ID, you if you guys want to send some query or anything, if you wanted to learn from me, if you want to have your doubts cleared, for from very minimal charges I'm charging for the course. So you, you can just send your doubts on this and book a call with me, right? So class 10th or even 12th French, if you see major, there are four parts. Not major, almost there are four sections: grammar, culture and civilization, reading section, and writing section. So I'll be telling you one by one about every section. If you want, I can also make a separate video on each and every section, which I might be doing in upcoming video, but this is a general video of how to study in 9th and 10th, basically 10th, right? So the book I followed, the first one is Onthogens. This is the main standard book. Actually, Onthogens and Get Ready, these two are the standard books out there for French language. Next is Set Right. Yeah, this book is not much popular, but is a great book, I must say. आई एम टेलिंग यू, बहुत सारे बच्चे टुगेदर विद भी यूज़ करते हैं. टुगेदर विद माई जूनियर्स यूज दिस बुक. कुछ जूनियर्स मेरे सेटराइट यूज़ करते हैं, कुछ जूनियर्स में टुगेदर विद यूज़ करते हैं. बट टुगेदर विद आई हैव रिव्यूड, उसमें बहुत मिस्टेक्स हैं टुगेदर विद वाली बुक में. बट सेटराइट इज़ अ वंडरफुल बुक. आई हैव यूज्ड इट इन माई क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 12th, and class 11th. It is a wonderful book for not only acing in your exams, but also for making your concepts really clear, the explanation given, the grammar rules, the amount of practice that you do. So it is like that, right? Now, and one more thing, then obviously my notes. आई मेड गुड नोट्स, मतलब बहुत ज़्यादा एस्थेटिक नहीं, बट ऐसे नोट्स क्योंकि इतनी सारी बुक्स को क्रिस्प करके यू टेक इट इन योर नोट्स. जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ग्रामर टॉपिक है, प्रोनोफेशनल, तो यू सी हाउ ब्यूटिफुली दीज नोट्स आर रिटन, एवरीथिंग जैसे मैंने पेंसिल से एक्स्ट्रा पॉइंट लिख रखा है, क्वेश्चन लिख रखा है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रखे हैं. ये जैसे कि उसी टॉपिक के नोट्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हैं तो यहाँ लिख रखे हैं. ठीक है, प्रोनो के नोट्स हैं. इफ़ यू वांट माय नोट्स आई कैन ऑब्वियसली सेंड देम यू टू यू.
देन जैसे कि लेटर्स हैं, राइटिंग सेक्शन की बात कर रहे थे, राइटिंग सेक्शन में काफ़ी चीज़ आती है, लेटर्स हैं, मैसेजेस हैं. सो उसके लिए यू नीड मोर एंड मोर प्रैक्टिस. इफ़ यू वांट आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस टॉपिक टू. जस्ट पुट इट डाउन इन द कमेंट्स. जैसे कि लेटर का यू सी इट इज़ रिटन इन अ प्रॉपर फॉर्मेट, हर चीज़ इसमें मेंशनड है, राइट. देन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, इफ यू सी, अभी राइटिंग सेक्शन बता दिया, ग्रामर बता दिया, कल्चर एंड सिविलाइजेशन, नोट्स आर रिक्वायर्ड फॉर ऑल. सो दिस चैप्टर इज नॉट ऑफ क्लास 10th. मेरे पास एक्चुअली आई एम नॉट हैविंग दैट बुक, नोटबुक जिसमें मैंने क्लास 10th के नोट्स लिखे थे, यू नो, ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन, बट आई हैड माई 12th वंस. सो जैसे कि मैंने 12th के नोट्स लिख रखे हैं कुछ इस तरह से. बेसिकली कल्चर एंड सिविलाइजेशन, इफ़ यू वांट टू एस, if you want to, you know, ace culture and civilization, right? Wait a minute. So for culture and civilization, reading Onthergen's book is very important. Onthergen's, ठीक है. एंड इफ़ योर टीचर गिव यू सम नोट्स, जैसे कि क्या होता है, सिलेबस के बेस पे लेटर्स आते हैं. सो कल्चर एंड सिविलाइजेशन एंड राइटिंग सेक्शन बोथ इन क्लास 10th एंड 12th गो हैंड इन हैंड. या तो कोई वैसा टॉपिक दे देंगे, जनरल टॉपिक, या फिर कल्चर एंड सिविलाइजेशन में से दे देते हैं, ठीक है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑन्थोजेंस, देन गेट रेडी के क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. बेसिकली दीज आर अ मस्ट. इससे डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आता है. एंड इवन सेट राइट के क्वेश्चंस आर रियली गुड. उसके क्वेश्चन, टुगेदर विद के क्वेश्चंस, आई डोंट वाउच फॉर देम, मुझे वो इतने ज़्यादा पसंद नहीं आए. मैंने टुगेदर विद भी पढ़ी थी, बट मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी बुक वो नहीं लगी. और उसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स थी. बट सेट राइट में आई डेंट फाइंड एनी मिस्टेक. मैंने पूरी बुक सॉल्व करी थी बेसिकली. जैसे तुम सेट राइट देखते हो तो उसमें यू गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो तुम्हें अलग से अरेंज नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है. देन एक्सरसाइजेस तुम्हें मिल जाती हैं, देन वोकैब मिल जाएगी, देन ग्रामर मिल जाएगा, ठीक है. सो ग्रामर मिल जाएगा. जैसे कि ये अब मैं तुम्हें ऑन्थोजेंस दिखाता हूँ. ऑन्थोजेंस कैसे पढ़नी है, देखो. ऑन्थोजेंस इज़ अ वेरी स्कैटर्ड बुक. इसमें इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी तरह से नहीं दे रखी है. एवरीथिंग इज़ गिवन इन अ वेरी स्कैटर्ड फॉर्मेट. तो जैसे कि ये देखो, ये चैप्टर 2 है, राइट. ल सिस्टम d'éducation en France, ठीक है, फ्रेंच एजुकेशन सिस्टम. सो उसके प्रॉपर जैसे कि नोट्स मैंने बना रखे हैं, राइट. बिलों ग्रामेटिकल, ये तुम्हारी ऑन्थोजेंस के पीछे दे रखा होता है. एंड ये कलर्ड पेजेस लें, क्योंकि मैंने नेट से ये पेजेस लिए हैं. सो ये बहुत ही अच्छी चीज़ें दे रखी होती हैं. एंड एक चीज़ जो बच्चे इग्नोर करते हैं आर दिस कॉन्जुगेशन. इफ़ यू वांट टू एस योर तो कॉन्विनाबल, दिस इज़ अ मस्ट. ये करना इज़ अ मस्ट. तो कॉन्विनाबल सारे टेंसेस, सब्जॉन्क्टिव, फ्यूचर, एसेक्ट्रा एटसेट्रा. तो ऑक्सिलर वर्ब, ठीक है. तो ये लेटर्स, यू नो, ये सब दे रखा है. यहाँ पे कुछ ग्लॉसरी. तो बच्चे पीछे ऑन्थोजन के पीछे का नहीं पढ़ते. मेरे जूनियर्स भी ये मिस्टेक करते थे. मैं उनसे कहता था कि पीछे का पढ़ो, ऑन्थोजन्स के बहुत हेल्पफुल चीज़ें दे रखी हैं, सिर्फ आगे का मत पढ़ो. एंड अगर आगे का तुम पढ़ते भी हो, यू हैव टू पे एम्फेसिस ऑन ईच एंड एवरीथिंग, राइट. बी इट द टेक्स्ट, फ्रेंच में जो दे रखा होता है उसका इंग्लिश मीनिंग साइड में दे रखा होता है, वो भी पढ़ना होता है. जो वो कैब दे रखी होती है, वर्ड मीनिंग्स दे रखे होते हैं, वो सब लर्न करना है. देखो, दिस माइट बी अ लिटिल ओवरवेलमिंग, एंड इट इज़ अ बिट ओवरवेलमिंग, बट again, interest, right? You have taken French, you have chosen this language because of your interest. At least this is what is my case, right? So this totally depend on your interest, right? If you are willing to do it. And yeah, you know, when you start putting so much efforts, you will see your French improving so much. You'll be enjoying the language, right. And one bonus tip. Okay, so not many people know this tip, but let me show you how this tip is. Previous year सैम्पल पेपर्स. ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से भी ज़्यादा इफेक्टिव है.
लोग बच्चे क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करते हैं एंड जो लेटेस्ट सैम्पल पेपर आता है उसे करते हैं, बट प्रीवियस ईयर के सैम्पल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो तुम अगर रिसोर्सेज की कमी बताते हो कि फ्रेंच में रिसोर्सेज नहीं है, जैसे कि व्हेन आई वाज इन 12th, थोड़ा सा 12th का बता देता हूँ, मैंने ये अच्छे से किया था, बहुत सारे पेपर्स मुझे मिल गए थे एंड उनकी आंसर शीट भी मिल जाती है यार, पास्ट ईयर पेपर्स। आई टेल यू हाउ टू लोकेट देम। सबसे पहले यू गो टू द CBSE वेबसाइट, राइट। CBSE की वेबसाइट पे जाना है, देन यू हैव टू गो टू एकेडमिक वेबसाइट, देन क्लिक ऑन सैम्पल पेपर्स। देन सैम्पल पेपर तुम फॉर एग्जांपल मुझे 2000, ये तो लेटेस्ट है, सो यू माइट हैव सॉल्व दिस। इसका क्लिक करता हूँ, जैसे तुम 10th में हो तो 10th में करो। नाउ गो टू फ्रेंच। सो इसका एक जो बेनिफिट ये है, तुम्हें फ्रेंच का पेपर मिल गया। बेसिकली दिस इज़ माय पेपर। मैंने टर्म 1 टर्म 2 वाला जब 2 बोर्ड्स हुए थे, तो क्योंकि प्रीवियस ईयर में तुम्हें ना आंसर्स नहीं मिलते, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो मिल जाएंगे, आंसर्स नहीं मिलेंगे। एंड MS पे क्लिक करोगे, ये मार्किंग स्कीम आ गई, आंसर्स सारे दे रखे हैं। सो दिस वॉज द बोनस टिप। इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट्स you can put them in the comment, and obviously you have come this far, that means you are definitely serious in getting good marks, and it will reflect on this. And if you want video on any other thing, like for example DELF exam and whatsoever, you can please put them in a comment. My contact details I'm sharing. See, from there you just send a mail. If you want to learn from me, if you want to study a particular topic, or maybe revise your 10th class French from me, maybe take a demo class or something, then you can mail me at this ID. From there on, I'll send you a link to book a call with me. Thank you.